I'll give you a recap of budgeting. Okay, so now budgeting we said is planning. So you plan using figures and then you decide what will be your income for the upcoming period. It actually has a time period, and then you decide what will be your revenues which you will be getting. So it's cash inflow, and what will be the expenses, that means cash outflow. Okay. So in a budget, you are actually looking for, you are expecting or estimating or forecasting your revenues and your expenses for the upcoming time period. So it has a fixed time period. This process is actually called budgeting, and that document is called a budget. And when you control on the basis of a budget, that is called as budgetary control. Okay? Now it involves planning and control. So first you plan, keeping some objective in your mind, and then you try to control. Okay, whatever you've planned, have you done according to that plan or not? Have you acted according to the plan or not? It has several advantages, and you are held responsible for the authority which you have over something. So if you have the authority over something, you will be held responsible for that. So this is responsibility accounting. Then we talked about the time period of budgeting, and we said operating budgets are normally 1 year, but we can have a rollover budget, or we can have a continuous budget which will still be 1 year even if a month has passed. So what we do, we add an extra month at the end. If 1 month has passed, we add an extra month at the end, so we still have 12 months budget. Okay, मेरी forecasting 12 महीनों के लिए ही रहती है. Then we talked about self-imposed budgets. When you make budget, when you involve each and every one, so this is actually a self-imposed budget or a participative budget, because people at different levels of the organization are involved in it. It has lots of advantages. You are motivated, you cannot run away from it, and things like these. So when you are making a budget, it's not made by one person. There is a budget committee, okay, who is making the budget, and in that committee we have lots of people. And this is what we will be doing in this chapter. We will be making lots of budgets starting from sales budget. So first you anticipate your sales, you forecast your sales, and then on the basis of those sales you will say कि इतना पैसे मेरे पास आएंगे. So you talk about revenues. फिर आप कहते हैं कि in order to make those sales we have to produce. फिर आप उसके मुताबिक प्रोडक्शन करते हैं. फिर आप कहते हैं कि अगर मैंने इतनी प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए. Then you decide the raw material. फिर आप कहते हैं अगर इतनी प्रोडक्शन करनी है उसके लिए लेबर चाहिए, so that is direct labor. इतना ओवरहेड चाहिए, that is manufacturing overhead budget, and selling and admin budget. फिर इन सब की बेसिस पे you make a cash budget, कि इन सब में कैश या जा रहा होगा या कैश आ रहा होगा, so you make a cash budget. Finally you make a budgeted financial statement which involves a budgeted income statement and a budgeted balance sheet. So far we've done sales budget, we've done production budget, and have you done direct materials budget? No. So we've done 2 budgets. So let's start with the budgets. Now the first one, we talked about sales budget. Okay. Now sales budget क्या है कि आप anticipate करते हैं कि sales कितनी होगी, expected sales कितनी. अब आपके पास data will be given like this. For example, over here we have Royal companies preparing budgets for the quarter ending June 30th. So this is for the quarter. Quarter का मतलब होता है कितने महीने? 3 महीने. तो 3 महीने जो कि June 30th को खत्म होते हैं. तो कौन सा महीना हो गया? जून, मई, आगे नहीं, एंडिंग June 30th. तो इसका मतलब कैसे जाएगा? जून, मई, अप्रैल. So we have 3 months: April, May, and June. So we have April, we have May, we have June, and then we have a total for the quarter. और एहतियातन मैं जुलाई और अगस्त यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें अगर कोई डेटा चाहिए होगा तो हम यहाँ से ले सकते हैं. ठीक. और इस तरफ मार्च भी लिख लेते हैं ताकि अगर मार्च का डेटा चाहिए हो तो भी देख सकें. ठीक है. So now we have March, April, May, and June. And by the way, I have forgotten the mic, and you people are not reminding me that the mic is not there, so you will have lots of echo in the video. So let's plug it in. अच्छा, ये हो गया. अब इसके बाद क्या करना है कि you look at the units and the expected selling price per unit. ठीक, क्या आपके यूनिट्स कितने होंगे? Now the units given over here are pretty simple. 20,000 for April, 20,000 for April. Now these are your units. Unit sales. ये आपके sales हैं in units में कि कितने units आप बेचेंगे. This will be given in the question. Yeah, some sort of
data will be given through which you will be able to find out कि कितने units आप लोग बेचेंगे. Now over here it says 20,000, 50,000, 30,000. So that's for the quarter. 20, 50 and 30. That means in the whole quarter you are selling 100,000 units. ये हो गया पूरे quarter का. इसके बाद extra उसने आपको बताया है for July 25,000 and for August 15,000. ये उसने आपको कुछ extra information दी है which might be needed later on in the question. ठीक है? अच्छा ये भी हो गया. फिर वो कहता है कि selling price is 10 per unit. Now the selling price over here is 10 per unit. So in case you want to find out the sales now, अगर आप sales को find out करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि number of units multiply by selling price per unit. So whatever you have unit sales, you will multiply these units with the selling price per unit, which is 10. Okay? So now if 20,000 units can be sold in April, multiply by 10, so that will give you a of 200,000. ये बात clear है? 200,000 is clear? Okay. So sales in April will be 200,000. Sales in May will be 500,000. Sales in June will be 300,000. Sales for the whole quarter will be 1 million. 100,000 multiplied by 10. ठीक? ये भी हो गया. Now for July it will be 250,000 and for August it will be 150,000. तो आसान हो गया. Pretty simple. ठीक है? Pretty simple. Now let's move on. इसके बाद we talk about collection. कि ये जो सेल्स की है इसकी कलेक्शन कितनी होगी मेरे पास. ठीक है? सो नाउ फॉर कलेक्शन इट सेज ऑल सेल्स आर ऑन अकाउंट. सो दैट मींस कैश पे कोई सेल नहीं हो रही, आप ऑन अकाउंट कर रहे हैं, व्हिच मींस यू आर क्रिएटिंग अकाउंट रिसीवेबल. नाउ रॉयल्स कलेक्शन पैटर्न इज गिवन ओवर हियर. सो दिस इज योर कलेक्शन पैटर्न. कलेक्शन पैटर्न विल डिफर फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, व्हिच मींस किसी क्वेश्चन में क्या कलेक्शन पैटर्न होगा, किसी क्वेश्चन में क्या होगा. यहाँ पे इट्स प्रीटी सिंपल. 70, 25 एंड 5. सो 70 यू विल कलेक्ट इन द सेम मंथ. 70% जो भी आपने सेल की है, लेट्स से यहाँ पे 200,000 की है, इसका 70% यू विल कलेक्ट इन द सेम मंथ, 25% इन द फॉलोइंग मंथ यानी इसका अगला मंथ, और 5% कभी भी आपको नहीं मिलेगा. सो 70 + 25 95 आपको मिल जाएगा. ये 5% बाकी आपको नहीं मिलेगा. सो 5% को आप भूल जाएंगे. ठीक है? सो नाउ यू नीड टू लुक एट द 95% सेल्स, और 95% आपको मिलेगा 70% सेम मंथ, 25% इन द नेक्स्ट मंथ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स कलेक्शन, सेल्स की कलेक्शन या कैश कलेक्शन आप लिख दें. नाउ इन सेम मंथ वी हैव 70%. सो 70% ऑफ दिस विल बी कलेक्टेड इन द सेम मंथ. 200,000 की आपने सेल की, इसका 70% इज 140,000 विच विल बी कलेक्टेड इन द सेम मंथ. और इसका इस 200,000 का 25% विल बी कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ. फॉलोइंग मंथ आपके पास आ रहा है मई, अप्रैल के बाद मई. सो 200,000 का 25% इज 50,000 which will be collected in May. ये हो गया. Now for May 500,000, इसका 75% would be 350,000. 7 5s are 35, और इसका 25% will be 500,000 का 25% will be 25 into 5 which is 125. आसान. इतनी मैथ्स बगैर कैलकुलेटर के करना सीख लें. ओके जी. 70% एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना. 70% देखें ये आया, इसका 70% आपको इस मंथ में मिल जाएगा, और इसका 25% नेक्स्ट मंथ. हर सेल का 70% सेम मंथ और 25% नेक्स्ट मंथ. ओके? सो इसका 25% नेक्स्ट मंथ. नाउ इसका 70% सेम मंथ. सो 70% इज 210,000, और इसका 25% 75,000 इन नेक्स्ट मंथ विच इज जून. नाउ 250,000 का 70% सेम मंथ. 70% वुड बी, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आगे मुझे शायद कहीं पे जरूरत पड़ जाए. उसने अगर डेटा दिया हुआ है मुझे कहीं पे, सो दैट मीन्स द एग्जामिनर हैज समथिंग इन द माइंड कि कुछ ना कुछ चाहिए होगा. अगर आप नहीं भी करते तो ना करें, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि यू नीड इट, सो यू विल हैव टू डू इट. ओके? पेपर में पेपर की नीड का हाउ डू आई नो? दिस इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड ओवर देयर, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या है. ठीक है? सो 187,500, 250,000 का 70%, 175,000.
ओके, सो 175,000 इन जून एंड इसी का 25% इन अगस्त विच विल बी 62,500. अगस्त का 150,000 का 70% वुड बी जी क्लास 105,000. ठीक है. सो नाउ इफ आई आस्क यू कि कैश कलेक्शंस आपने हर मंथ में कितनी की हैं, सो नाउ इट्स प्रीटी सिंपल. अप्रैल में आपने कैश कलेक्शन कितनी की है? 140,000. ठीक है, अब तक मुझे यही पता है. लेट्स लुक एट द डेटा. इट सेज द मार्च 31st अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी कलेक्टेड इन फुल. मार्च में आपके पास कुछ रिसीवेबल थे, अकाउंट रिसीवेबल थे जो आपने कलेक्ट कर दिए इन फुल. तो अगर मार्च 31st है, यहां पे कुछ रिसीवेबल है आपका, तो वो आप कलेक्ट करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ विच इज अप्रैल. ठीक है, तो अप्रैल में वो आपको सारे मिल गए. वो फुल अमाउंट कितना है? 30,000. सो द होल विल बी रिसीव्ड इन अप्रैल. सो दिस इज सेल्स कलेक्शन सेम मंथ एंड फॉलोइंग मंथ दिस इज 25% और इसकी कैलकुलेशन होगी जी. हमने 31 मार्च को क्यों कलेक्ट नहीं किया? 31 मार्च को क्यों कलेक्ट नहीं किया? क्योंकि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कलेक्ट नहीं किया. क्वेश्चन में नहीं will be collected in full कब? कब? will be following. अच्छा, विल बी कलेक्टेड इन फुल कब? 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस आप किस टाइम फाइंड आउट करते हैं? 31 मार्च का अगर क्लोजिंग बैलेंस है, दैट मींस इट इज एक्चुअली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल. तो इसका मतलब ये है कि ये अप्रैल के महीने में मिलेगा जी. लेकिन 30th मार्च हो नहीं सकता ना. क्लोजिंग बैलेंस is always calculated on the last day of the month and on the closing of the day. Closing of the day. Closing of the day. Closing of the day does not mean 8 o'clock in the morning, midday, afternoon, evening. It means सबसे आखिर में जब आप बंद कर रहे हो ना बिजनेस को, तब आप क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं फॉर द डे. तो ये उस वक्त क्लोजिंग होती है. क्लोजिंग के बाद अगर कोई चीज होती है, सो इट इज कंसिडर्ड, पहले तो आप करते नहीं है, अगर कोई चीज होती है सो इट इज कंसिडर्ड टू बी डन इन दी फॉलोइंग डे. क्लोजिंग मैंने आज कर दी है, मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैंने क्लोज कर दिया, सब अकाउंट्स मैंने क्लोज कर दिए. तो अगर इसके बाद मैं कोई सेल करता हूं, सो इवन दैट इज रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट डे. उसको मैं आज रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं नेक्स्ट डे करूंगा, वो सेल भी नेक्स्ट डे की होगी, उसका CGS भी नेक्स्ट डे वाले में चला जाएगा, यानी नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा, वो सब कुछ नेक्स्ट में चला जाएगा. मैं आज क्लोजिंग कर चुका हूँ, आई हैव क्लोज्ड माय बुक्स, सो आई कैन नॉट रिकॉर्ड इट टुडे. ठीक है, दिस इज हाउ अकाउंटिंग गोज. अगर इस तरह हो तो फिर एक कस्टमर आया, फिर रिकॉर्ड करें, फिर आप क्लोज करें, फिर दूसरा आ जाए, फिर आप रिकॉर्ड करें. नहीं, आप क्लोज कर देते हैं. नॉर्मली आप क्लोज करते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, यू लॉक इट एंड देन यू क्लोज इट. ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करते. अगर आपने कहते हैं कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब सेल्स, सो यू विल कीप ऑन सेलिंग थिंग्स, बट दोज सेल्स विल बी कंसिडर्ड टू बी फॉर द नेक्स्ट डे, नॉट टुडे. ठीक, आज का दिन क्लोज. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव. नाउ इन अप्रैल दैट मींस यू कलेक्टेड अ टोटल ऑफ 140 प्लस 30, 170,000. In May you collected 350 plus 50, 400,000. In June you collected 210 plus 125, 335,000. In total के लिए 140 plus 350 plus 210 will give you this figure. This will be 140,000 plus 350,000 plus 210,000. This will give you 700,000. Okay, 30,000 plus 50,000 plus 125,000. 205,000. 205,000 plus 700,000. क्या? 205,000 plus 700,000. 905,000. 175,000 plus 75,000. 50,000. 105,000. 62,500. 167,500. ठीक है, सो दिस इज योर कैश कलेक्शन. सो लेट्स मूव ऑन. ये आपकी कैश कलेक्शन हो गई. नाउ कैश कलेक्शन के बाद इसको डबल चेक किधर से करें? इसको डबल चेक करना है. 700,000 1 मिलियन की सेल्स हैं, इसका 70% सेम मंथ में होता है. ठीक है, सो 70% यू कैन फाइंड आउट ओवर हियर इज 700,000. और बाकी जो इसका जो नेक्स्ट मंथ में है वो नेक्स्ट मंथ होगा, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ का ये फिगर इज एक्चुअली कंसर्न विद दिस फिगर, नॉट विद दिस फिगर.
ठीक है, ये 205 का यही है कि आप इसको टोटल करें, इसको टोटल करें और इसको टोटल करें, इट विल बी द सेम। तो क्रॉस चेक हो गया, इसका टोटल विल बी इक्वल टू इसका टोटल। सो इट वर्क्स मोर लाइक एक्सेल शीट, यानी यहां से टोटल किया आपने और फिर यहां से टोटल किया तो वो सेम आ जाएगा। ठीक है, सेल्स जिस तरह होते हैं। ठीक है, गॉट द आइडिया जी। सर इसका अभी मतलब यूज क्या है इसका, उसका रियल बिजनेस में चेक करें इसमें किस तरह प्रेडिक्शन? इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एग्जांपल जैसे इसका यूज़ ये है कि आपको पता चलेगा आपके पास कितने पैसे आएंगे। अगर ये आपको पता हो कि आपके पास कितने पैसे आएंगे, आप उसके मुताबिक पैसे खर्च करेंगे। सर इसकी नोट कर रहे हैं, इसमें करंटली अगर पीरियड मई का चल रहा है तो इस समय अगस्त की प्रेडिक्शन किस तरह कर सकते हैं? अगर पीरियड क्या चल रहा है? मई का चल रहा है, महंगा चल रहा है, डिड नॉट गेट द मई क्वेश्चन। मंथ का पीरियड चल रहा है करंटली, हाँ। और मैं भी बजट बता रहा हूँ अगस्त का, तो इस समय अगस्त की प्रेडिक्शन किस तरह कर सकता हूँ? अगस्त की प्रेडिक्शन आप ये कर सकते हैं कि अगस्त में कितनी सेल होगी। पहले सबसे पहले आपने ये प्रेडिक्ट करना है। आप सिर्फ एक चीज़ प्रेडिक्ट करेंगे कि सेल्स कितनी होगी, अमाउंट। ठीक है, द सेल्स डॉलर्स, सॉरी द सेल्स यूनिट एस्टिमेशन होगा। एस्टिमेशन होगा। फिर आप एस्टिमेट करते हैं कि पर यूनिट सेल आप क्या रखेंगे अगस्त में। ठीक, उसके बाद आप बता देंगे कि सेल्स कितनी होगी। फिर उसके बाद आप ये बता देंगे कि सेल्स तो इतनी होगी, इसमें से पैसे कितने आएंगे मुझे। वो आप जनरल ट्रेंड देखते हैं कि आपको हर महीने कितने पैसे कैश में मिल जाते हैं, कितने नहीं मिलते। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि अगस्त में जो पैसे जो सेल करूंगा उसके कितने पैसे मिलेंगे और कितने नहीं मिलेंगे। ठीक, गेटिंग द आइडिया? तरीका इस तरह है, इस तरह बजटिंग का। हाँ, दिस इज हाउ बजटिंग शुड बी डन। लेकिन हम इसमें फोरकास्ट करेंगे, फोकास्ट करते हैं, सब कुछ फोकास्टेड है, एवरीथिंग इज फोकास्टेड। अगर आपकी फोकास्ट गलत है, अनरीजनेबल है, तो फिर इट्स यूजलेस, अच्छा नहीं है बजट। लेकिन अगर आपकी फोकास्ट अच्छी है, क्लोज टू रियलिटी है, तो इट्स अ गुड टूल। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड टूल देयर। ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन। ये कर लिया, अब डिसाइड करना है प्रोडक्शन कितनी करनी है। अब याद रखें, प्रोडक्शन उतनी करनी है जितनी सेल हो प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हो, ताकि अगर प्रेडिक्शन के मुताबिक सेल ना हो, सेल ज्यादा हो जाए, तो आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा हो एक्स्ट्रा, ताकि आप उसको सेल कर सकें एंड यू डू नॉट लूज सेल्स और कस्टमर्स। ये भी हो गया। ओके, नाउ द मैनेजमेंट एट रॉयल कंपनी वांट्स एंडिंग इन्वेंट्री टू बी इक्वल टू 20% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स बजटेड सेल्स इन यूनिट्स। अब वो कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बजटेड सेल्स इन यूनिट्स ऑफ द कमिंग मंथ का 20% होना चाहिए। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हर मंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक, वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। फिर आगे वो कह रहा है कि ऑन मार्च 31 4000 यूनिट्स वर ऑन हैंड। तो मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री 4000 थी, तो जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो ऑटोमेटिकली अगले मंथ की बिगिनिंग बन जाती है। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है ऑफ मार्च, सो दिस विल बिकम अप्रैल्स ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अप्रैल। अप्रैल में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? उसने कहा कि जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है इट शुड बी इक्वल टू 20% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स बजटेड सेल्स इन यूनिट्स। सो द नेक्स्ट मंथ इज मई, और इसका सेल्स इन यूनिट्स कितना है? 50,000। तो इस 50,000 का 20% आपके पास क्लोजिंग में होना चाहिए अप्रैल में। ठीक, सो 50,000 का 20% इज 10,000। सो दिस 10,000 शुड बी योर क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर अप्रैल। गॉट द आइडिया? ओके, ये हम क्यों करते हैं? मतलब इसका क्या जरूरत है कि हम इसका इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैं इसकी बेसिस पे ये डिसाइड करूंगा कि प्रोडक्शन कितनी करनी है। इसकी बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि प्रोडक्शन कितनी करनी है। सही है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो नाउ दिस 10,000 विल बिकम ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर द मंथ ऑफ मे। मे का क्लोजिंग कितना होगा? मे का क्लोजिंग विल बी 90,000 50,000। 30,000 का 20%। ये आपने क्या किया है? 6,000 सर, ये आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 6,000 दिस 4,000 क्लोजिंग फॉर मार्च विल बिकम ओपनिंग फॉर अप्रैल। अप्रैल का क्लोजिंग वुड बी 10,000। April का closing will be 20% of 50,000 which is 10,000. This 10,000 will become opening for May. May का closing will be 6,000। June का 20%. So 30,000 का 20% equals 6,000. This will become opening for June. July का 25% का 20% will become closing for June. So this will be 5,000. This 5,000 will become July का opening. August का
August का sales would become 20% of closing for July, so it will be 3000. सही है? दोबारा करें. ओके. किसी भी मंथ का क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले मंथ की सेल का 20% होगा. मार्च का क्लोजिंग उसने पहले से दे दिया है 4000. ये 4000 अप्रैल का ऑटोमेटिकली ओपनिंग बन गया. अप्रैल का क्लोजिंग मई का जो सेल है उसका 20% होगा. ठीक है. सो 20% ऑफ 50,000 इज 10,000. ये 10,000 मई का ओपनिंग बन जाएगा. मई से नेक्स्ट मंथ इज जून. 30,000 सेल्स. 30,000 का 20% इज 6,000. वो बन गया ओपनिंग फॉर मई. ये सॉरी क्लोजिंग फॉर मई. ये बन जाएगा जून का ओपनिंग. ये हो गया. जून में क्लोजिंग विल बी जुलाई की सेल्स का 20%. जुलाई की सेल्स का 20%. 25,000 का 20% इज 5,000. ये बन गया जून का क्लोजिंग विच विल बिकम ओपनिंग फॉर जुलाई. जुलाई का क्लोजिंग विल बी अगस्त की सेल का 20%. अगस्त की सेल इज 15,000. 20% इज 3,000. क्लियर सो फार? ये बाय द वे हम पहले कर चुके हैं. आई एम ओनली रिपीटिंग. ये सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूं. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. सर ये 4000 जो रहता है फर्स्ट में वो किधर जाएगा सर? जो इन्वेंट्री में रहती है 6000 लेकिन जो 4000 रहेगा उसका क्या करें? ये 4000 अप्रैल में जो रहता है सर. अप्रैल में 4000 रहता है. 10,000 चला गया 4,000 उसमें रह गया. भाई ये कोई वो नहीं है. ये हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं. नहीं मुझे नहीं पता वो उधर रह गया कि नहीं. अभी करता हूँ देखता हूँ कि क्या होगा. ओके ओके क्लास पे अटेंशन. अगस्त का ओपनिंग तो अगर इस तरह करता रहूँ तो फिर ये जौन सा साल है तो फिर तो मैं 10 सालों तक इस तरह लगा रहूँगा. दरअसल मुझे क्वेश्चन में ऐसे मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज ओनली 3 मंथ्स. वो जो मैंने लिखा है वो भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. ठीक है. ओके लेट्स मूव ऑन जी. लेट्स मूव ऑन. नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना है. यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट. और इसका तरीका क्या है? यूनिट्स टू बी यहाँ पे मार्च का सेल इस तरह फाइंड करेंगे. मार्च का सेल मुझे क्यों चाहिए अजीम? वैसे अगर फाइंड करना चाहे वैसे क्यों फाइंड आउट करना चाहिए? चाहिए सर. क्या पता सर आप ऐसा क्वेश्चन दे दें. इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप मार्च की सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि जो कैश कलेक्शन आप लोगों ने की थी 30,000 उसकी बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. 30,000 डिवाइड बाय अजीम ये इधर का काम नहीं है. अगर ये करना चाहते हैं आप हम ब्रेक में बैठ के आराम से इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. हार्डली 1 मिनट. अच्छा ठीक. ओके जी आगे चलें. सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. नाउ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू हैव अ शार्प माइंड ना so it will go everywhere in all direction. This is the sign of a sharp mind or a clever mind. वो नेगेटिव साइड पे भी जाएगा, वो पॉजिटिव साइड पे भी जाएगा. उस एनर्जी को कंटेन करना पड़ता है. ठीक है. उस एनर्जी को कंटेन करना पड़ता है. मैं दिन में कोई 10,000 चीज़ें सोचता हूँ, सारी पॉजिटिव नहीं होती. ठीक. मुझे वापस लाना पड़ता है अपने आप को. कम टू द पॉइंट. ठीक. स्टिक टू द पॉइंट. सो यू नीड टू स्टिक टू द पॉइंट. आपकी एनर्जीज बहुत है माशाल्लाह. उनको अपने होल्ड द हॉर्सेस और उनको इस जगह पे लगाएं इस वक्त, किसी और जगह पे नहीं. ठीक. ओके. ये सब के लिए. सो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड क्लास. कितने यूनिट्स बनाएं? अब मुझे पता है कि मेरे पास ओपनिंग है 4,000. 4,000 मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं. मैंने सेल्स कितनी करनी है? सेल्स करनी है 20,000. 20,000 मैंने सेल्स करनी है. ठीक. 4,000 पहले से पड़े हैं तो मुझे और कितने बनाने पड़ेंगे? 16,000 और बनाने पड़ेंगे. ठीक. लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्लोजिंग में भी 10 पड़े हों. सॉरी 4 पड़े हों. सॉरी 10. सॉरी
क्लोजिंग में भी 10 पड़े हों तो फिर मैंने कितने बनाने हैं? 26,000. सो दिस इज द फॉर्मूला. और अगर आप इसको अकाउंट्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं, सो इट्स इवन सिंपलर. अकाउंट्स क्या होता है? इन्वेंट्री. ओपनिंग यहां पे आता है, क्लोजिंग यहां पे आता है. अगर आप जो सेल करते हैं वो यहां पे आता है, जो सेल हो जाती है वो यहां से निकल जाता है ना, ठीक. और जो प्रोड्यूस करते हैं वो यहां पे ऐड हो जाता है, ठीक. इसका मतलब ये है कि ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग विल गिव यू सेल. इस तरह आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं. मैं इसमें से आपसे कोई भी चीज मांगू, इफ आई वांट यू टू फाइंड आउट ओपनिंग, सो यू कैन से सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग माइनस प्रोड्यूस्ड इक्वल्स ओपनिंग. कोई भी आप चीज इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं. 4 चीजें हैं, इसमें से एक मिसिंग हो तो वो फाइंड आउट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट 3. अब मैं आपसे कहूं कि प्रोड्यूस्ड नहीं है आपके पास, you need to find out the produced. So what you need to do? Sale plus closing minus opening. ठीक है? Sale plus closing minus opening. अब जरा देखें यहां पर सेल्स यूनिट कितने थे आपके पास? 20 प्लस क्लोजिंग. क्लोजिंग कितने हैं? 10. 30 माइनस ओपनिंग 4 इक्वल्स 26. आ गया आंसर? जो मर्जी आपकी, टोटली अप टू यू, जो मर्जी आपकी, जिस तरह आप करना चाहते हैं, ठीक है. बस चीटिंग मत कीजिएगा एग्जाम, ठीक. ओके, लेट्स फाइंड आउट नाउ. लेट्स स्टार्ट जी, लेट्स स्टार्ट. अब ऐसा कीजिएगा कि एग्जाम में जब इस जगह पर आ जाएं तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है या गलती का चांस है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्किंग्स हैं, बार बार करना है, गलती का चांस है, तो इस फॉर्मूले को कहीं पे लिख दें ताकि इसको करने में आपको आसानी हो, ठीक है. फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या बनाया? हमने कहा कि सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. अब ये काम सब जगह पे करते रहें, आपके पास आंसर आता रहेगा, प्रोड्यूस आता रहेगा खुद ब खुद, ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट. फॉर द फर्स्ट वन, सेल्स 20 प्लस क्लोजिंग 10 माइनस 4. सो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इज 26. सही. अब यहां पे आ जाए, सेल्स 50 प्लस क्लोजिंग 6, ठीक है. 56 माइनस ओपनिंग 10, 46,000. सर हम इस तरह करेंगे, इस तरह आपने किया, इसमें तो कोई पता भी नहीं चल रहा कि ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है. आप जिस तरह करते हैं करें. मैं जो आपको एमसीक्यू दूंगा ना, उसका आंसर मुझे ला के दें. जिस तरह लिखते हैं लिखें, हाथ से लिखें, पाँव से लिखें, दीवारों पे लिखें, फ्लोर पे लिखें, छत पे लिखें, एक्स्ट्रा शीट पे लिखें, अपने कपड़ों के ऊपर लिखें, जहां मर्जी लिखें. आई एम नॉट कंसर्न. एक्स्ट्रा शीट, अच्छा, दिस टाइम अराउंड I would request them to give extra sheet, but remember, every sheet of paper you use, I need to chop off a tree. ठीक है? So save on paper, save on trees. Just because you don't have enough trees, that's why it's so hot. Sir, we fill the paper if we don't have. That is because of the mafias. The timber mafia. कैलकुलेटर्स होते हैं ना आपके पास, इसके अंदर मेमोरी का फंक्शन होता है, ठीक है. अच्छा चलें, ठीक है. I'll provide the sheets. Okay. I'll provide the sheets, class. Problem solved. I'll provide the sheets. So, June. Now once again, sales 30 plus closing 5 minus opening 6. So 30 plus 5, 35 minus 6 equals 29. Okay. Total का नहीं लिखते अभी. Let's move on to July. 25 plus 3, 28 minus 5, 23. इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, छोड़ दें, ठीक है. ओके. फॉर दिस कॉलम व्हाट यू कैन डू इज, इन सबको ऐड करके भी कुछ ना कुछ हो सकता है, या ओपनिंग क्लोजिंग फॉर द क्वार्टर लिख दें, उससे भी हो सकता है. दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, ठीक है. ओके. ओपनिंग फॉर द क्वार्टर इज 4. सो क्वार्टर इसका ओपनिंग 4. क्वार्टर का क्लोजिंग इज 5. क्लोजिंग इज हियर 5. क्लोजिंग 5. 100 प्लस 5 माइनस 4, 101. अब चेक करें जी, क्या ये 101 इन तीनों के बराबर है? 26, 46, 29 बराबर है तो सही है. क्या बराबर है सर? 26, 46, 29. Add them up. 26,000 plus 46,000 plus 29,000 should be equal to 101,000.
इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। बजटिंग के क्वेश्चन में ये फायदा है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, क्लियर सो फार? ओके, सो we have, what have we achieved today? In 1 hour today we've broken our tripod, we have repeated what we did earlier, so we have not even started yet. So officially the class starts now. अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है नहीं, the class has just started. For God's sake, the class has just started. The class has just started. Class has just started. Not even a single minute break. Okay, let's start Ji. Let's start class. So now today's lecture. Today's lecture we will start from here. Take आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है अभी, इससे पहले आज का लेक्चर नहीं था, ठीक, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट मटेरियल्स बजट। सो वी नीड टू डू डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। ये इंशाल्लाह एक गो में करते हैं, उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक, यू कैन डू योर प्रेजेंटेशंस, और फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे एंड देन वी कैन होपफुली फिनिश इट ऑफ। देन वी कैन हैव क्विजेस, वी कैन हैव प्रेजेंटेशंस, वी कैन हैव फन। ठीक है, ओके। फन के लिए आप पैसे निकालेंगे तो फन होगा। स्टार्ट। एट रॉयल कंपनी 5 pounds of material are required per unit of product. 5 pounds of material is required per unit of product. What does this mean? Noor, this. To use 1 unit, you need 5 material. To use 1 unit बनाने के लिए 5 pound का मटेरियल चाहिए। पाउंड नॉट एज इन पाउंड, ये नहीं, 5 pound ये वाला वेट वाला। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। सो 5 pound का आपको मटेरियल चाहिए 1 यूनिट बनाने के लिए। आपने अप्रैल में आपने कितने यूनिट्स बनाए? 26,000 के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होगा? मल्टीप्लाई बाय 5। सो 26,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 2 26,000 multiplied by 5 is not 125. 25 multiplied by 5 is 125. 130,000। इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पहले नहीं कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। किलोग्राम में? क्या इस जगह पे कोई ऐसी बात है जो कि किलोग्राम में आ रही हो? नहीं, बात ऐसी ना कि हमको एसआई स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल की यूज करना पड़ता है। ओके, आपके क्वेश्चन में अगर इस तरह की कोई बात हो तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है सो डोंट गेट इनटू सच कॉम्प्लिकेशंस, कीप इट सिंपल। सर हमने तकरीबन 5 साल खराब है। आप अगले 5 साल बचा सकते हैं अगर आप इस चीज के ऊपर गौर करें। कीप इट बेसिक, कीप इट बेसिक, कीप इट सिंपल, लाइफ इज वेरी गुड। ओके, अगर सेमेस्टर बच जाएगा तो ये फीस हम कहाँ से कमाएंगे? नहीं, आप कहाँ से? चोरी करें, डाका डालें, फ्रॉड करें, ठीक, स्मगलिंग करें। Why should I care? I'm in a business school, I need money. Okay, jokes apart. Please come back. यही मसला है ना, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं और काम भी है, काम में लगाएं। ओके, 46,000 multiplied by 5. 46,000 multiplied by 5. 230,000.
Okay. 230,000. 230,000. 29,000 multiplied by 5. 145,000. 101,000 multiplied by 5. 101 505 505. ये हमने नहीं किया सॉल्व, कर लें इसको, सॉल्व कर लें क्लास। इसमें आंसर आपके पास क्या आ रहा था? 23। 23,000 मल्टीप्लाई बाय 5. 1000 मल्टीप्लाई बाय 5. 115,000. सही? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ आई नो कि कितना डायरेक्ट मटेरियल मुझे चाहिए, ठीक है, इन यूनिट्स को बनाने के लिए। बट इट्स द सेम स्टोरी अगेन। व्हाट सेम स्टोरी? रॉ मटेरियल मुझे चाहिए 130,000। इज इट पॉसिबल कि पहले से कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हो? यस पॉसिबल। इज इट पॉसिबल कि कुछ रॉ मटेरियल आपने छोड़ना भी है? क्या पता है एकदम डिमांड ज्यादा हो जाए, सेल ज्यादा हो जाए और प्रोडक्शन करनी पड़ जाए, यू वोंट हैव रॉ मटेरियल। सो इट्स द सेम स्टोरी जो अभी थोड़ी देर पहले यहां पे की थी, विच मीन्स आई नीड टू हैव एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड देन आई नीड टू फाइंड आउट कि कितना रॉ मटेरियल खरीदूं। सो वंस अगेन गो बैक टू द सेम टी अकाउंट। क्या था? ओपनिंग, यहां पे जो ऐड हो जाए बीच में, अब ये रॉ मटेरियल है, उस वक्त ये फिनिश गुड था, अब ये रॉ मटेरियल है। ओपनिंग, यहां पे एडिशन विच इज एक्चुअली परचेज, दिस एडिशन इज व्हेन आई परचेज रॉ मटेरियल। सो ओपनिंग प्लस परचेज, दिस इज रॉ मटेरियल यूज्ड एंड दिस इज क्लोजिंग। ये सब पाउंड में है, पाउंड मतलब ये कि वजन वाला पाउंड, ठीक है। चलें आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। सो वंस अगेन फॉर्मूला इज द सेम, वंस अगेन फॉर्मूला इज द सेम। अब आते हैं यहां पर, देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग कितना है हमारे पास। मैनेजमेंट वांट्स मटेरियल्स ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इक्वल टू 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन। यानी जो अगला मंथ प्रोड्यूस करना है, जो प्रोडक्शन करनी है, उसका 10% रॉ मटेरियल आपके पास पहले से होना चाहिए। ओके, आगे चलें। ऑन मार्च 31st 13,000 पाउंड्स ऑफ मटेरियल आर ऑन हैंड। ऑन मार्च 31st पे जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? मार्च 31st क्या होगा? क्लोजिंग। सो मार्च 31st पे जो मेरे पास पड़ा हुआ है, दिस इज क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक। सो क्लोजिंग रॉ मटेरियल मार्च 31st आई हैव 13,000 पाउंड्स। 13,000 pounds. Now this 13,000 pounds will automatically become opening raw material for the next month. Next month is April. April में 13,000 opening बन गया, ठीक है। लेकिन अब अप्रैल का क्लोजिंग भी तो फाइंड आउट करना है ना, ठीक, ओके। अप्रैल का क्लोजिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमें मई की किस चीज का 10%? प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन कितनी करनी है आपने? 46,000। सर समझ नहीं, इसमें यूनिट्स का क्या लेना देना है? इसमें यूनिट्स का क्या लेना देना है? यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, लेकिन ना अतीक वो दूसरा है, मुदस्सिर। ओके, याद आ रहा था वैसे ही आपने बता दिया। ओके, सो मुदस्सिर देखें, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस ये कि कितने मार्कर बनाने हैं। ये मैं किस चीज की बातें कर रहा हूं? रॉ मटेरियल। इसका रॉ मटेरियल प्लास्टिक है, मैं कह रहा हूं प्लास्टिक कितना चाहिए, प्लास्टिक कितना चाहिए ये डिसाइड कौन सी चीज करेगा कि जो आपने यहां पर यूनिट्स बनाने हैं 46, इसके लिए कितनी प्लास्टिक चाहिए? 230,000 प्लास्टिक चाहिए, 230,000 पाउंड्स या केजी, व्हाटएवर जो भी यहां पे यूनिट है, ऐसा यूनिट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, केजीस, ग्राम्स, ठीक। ओके, सो 230,000, इसका 10% यहां पर पहले से मौजूद होना चाहिए। 230,000 आपको यहां पे चाहिए प्रोडक्शन के लिए, इसका वो आपसे कह रहे हैं कि 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन, ये फॉलोइंग मंथ की प्रोडक्शन है, इसका 10% यहां पे होना चाहिए क्लोजिंग। सो 10% वुड बी 23,000।
सर ये प्रोडक्शन है क्या? सर प्रोडक्शन तो 46,000 यूनिट। प्रोडक्शन तो 46,000 है, लेकिन 46,000 मार्कर्स हैं। मैं किस चीज़ की ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ? मटेरियल की। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस 46,000 को कन्वर्ट करना है मटेरियल में, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो 46,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 230,000। इसका 10%। अब सही है फ़हीम? सही है? ओके फ़हीम, मैं आपको इतना सिखाता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, आप मुझे ना उधर लेके गए ना उधर लेके गए। सर नींद पूरी नहीं हुई। सर मैं तो लेने जाने वाला था लेकिन आप निकाल नहीं पाए। सर आप रास्ते में भी डाले, कोर्ट में डाले। सर आप ब्रेक क्यों गए? सर तो आपने बताया सही है। अरे तो आपको जितना भी हो सका तो आपने वो किया। सर ओके ये स्टोरी इस पे बाद में बात करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। So now we have closing over here and this will become opening for the next month. तो यहाँ का closing 23,000, यहाँ का बन जाएगा opening। नहीं सर 13,000 किधर गया? कहीं नहीं गया, इधर ही पड़ा हुआ है, इधर ही पड़ा है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे अभी। प्लस करें। I'll come back, अजीम I'll come back, hold your horses। ये इस महीने का क्लोजिंग था, इसका बन गया ओपनिंग। इस महीने का क्लोजिंग ये था, ये इस मंथ का ओपनिंग। अभी यहाँ का क्लोजिंग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा। फिर यहाँ का क्लोजिंग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा। दैट्स हाउ आई विल गो। ओके सो नाउ क्लोजिंग फॉर मे विल डिपेंड ऑन नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट मंथ इज जून। जून का प्रोडक्शन 29,000। रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 145,000। इसका 10% यहाँ पर विच विल बी 14,500। दिस इज क्लोजिंग, दिस विल बिकम ओपनिंग फॉर जून। अब जून का क्लोजिंग फाइंड आउट करना है। फॉर दिस आई नीड जुलाई प्रोडक्शन 115,000। इसका 10% 11,500। दिस विल बिकम क्लोजिंग फॉर ओपनिंग फॉर जुलाई 11,500। इससे आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकता, डेटा इज नॉट गिवन। सो एस एंड नाउ यू कैन सी वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑगस्ट एंड नाउ वी बीन रिस्ट्रिक्टेड टिल जून, क्योंकि जुलाई की भी फिगर्स पूरी नहीं है। तो मैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहां तक आ गया हूं। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में जो डेटा होगा एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, इट विल बी यूजफुल। ठीक है, लेकिन मेरे एग्जाम में यू नीड टू बी केयरफुल कि जो एक्स्ट्रा डेटा होता है ज़्यादातर वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक, लेकिन कभी कभी काम कभी होता है। जी सर हमने इस फार्मूले के थ्रू हमने अभी मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, अजीम करने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं होल्ड योर हॉर्सेस। Okay, so now let's use this formula now. I need to find out raw material to be purchased. अब खरीदना कितना है? मुझे पता चल गया ओपनिंग कितना है, मुझे पता चल गया क्लोजिंग कितना है, मुझे पता चल गया इस्तेमाल कितना करना है। अब खरीदूं कितना? To be purchased. Okay, so let's talk about to be purchased. Let's come back to this formula. To be purchased कहाँ पे? ये इसको अगर फाइंड आउट करना है, so used plus closing minus opening. Okay, so used plus closing minus opening. अगर मैं ये करूंगा तो मुझे to be purchased आ जाएगा। ओके used। अब आ जाए इधर, यूज कितना करना है? 130,000 प्लस क्लोजिंग कितना है? 23 माइनस ओपनिंग 13। So 130 plus 23, 130 plus 23, 153 minus 13, 140,000 to be purchased, 140,000 to be purchased. जी अजीम, आप सही है? सही है? वंस अगेन आपकी मर्जी, आप जिस तरह लिखते हैं। एग्जाम में आपकी मर्जी है, क्लोजिंग ऊपर लिख दें, ओपनिंग नीचे लिख दें, पेज के पीछे लिख दें, पेज के ऊपर लिख दें, जहाँ मर्जी लिखें, नॉट कंसर्न। ओके जी, रफ वर्क नीडेड वहाँ पे होता है जहाँ पे मुझे शक होने लग जाए कि आप कहीं से चीट करके लिख रहे हैं, तो फिर मुझे आपका रफ वर्क देखना पड़ेगा। कहाँ से? साथ वाले से, पीछे वाले से, आगे वाले से, इस तरफ वाले से। सर उसका क्या भरोसा कि उसने गलत लिखा है? सर आप यकीन से ऐसा इसका किसी को भी ये नहीं जाता। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। सर मेरा पेपर तो सारा तुक्के में था।
झूठ ना बोलो, तुमने तुम्हारी बस तो मैं ऐसे देखा था कि मैं अच्छा देखें, याद रखें आप लोग, प्लीज़ आप लोग ये बात याद रखें कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ रही है, वो यूट्यूब पे जा रही है, उसको पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। आई हैव व्यूअर्स फ्रॉम यूएस, आई हैव व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया, सो प्लीज़ सर इसमें तो सिर्फ 50 व्यूज आते हैं, 40 व्यूज। जितने भी आते हैं आने दें, आपको क्या है। एक दिन आएगा कि ये सब हर जगह पे वायरल हो जाएगी, उस दिन आपकी बातें भी वायरल हुई होंगी। सर आप थोड़ा कीवर्ड इस्तेमाल ओके ओके, नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन, खर्च आप करें, हम आपका pay attention. Okay, next one class, next one. Now next one, used 230 plus closing 14,500 minus opening 23,000. This will give you 230 plus 14,500. So this will be 244,500 minus 23,000. 221,500. ये भी हो गया. Now let's move on to the next one. 145,000 plus 11,500 minus 14,500. This will give you 142,000. 42,000. ठीक? Okay. क्वार्टर को इस वक्त छोड़ रहे हैं, ये सॉल्व नहीं कर सकते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वार्टर स्टार्ट होता है इस मंथ से. सो इस मंथ का ओपनिंग इज 13. सो राइट 13 ओवर हियर फॉर द क्वार्टर फिनिश होता है यहां पर, इसका क्लोजिंग है 11,500. ओके, यूज द सेम फॉर्मूला. 505,000 प्लस 11,500 माइनस 13,000 विल गिव यू 5,03,500. Cross check. 140 plus 221,500 plus 142,000. जी, सेम, कंफर्म, सही है. चेक कर नजीम. सर आपने 10% दिया है, जी, आपने 10% दिया है, आपने किस चीज़ के लिए? 10% किस चीज़ के लिए है? ओके, हाउ मच मटेरियल शुड बी परचेज इन मे? नूर, आपका क्वेश्चन था. ओके, I'll come back to it first. Let's do it. How much material should be purchased in May? 221,500. सही है. So option number A. Okay, सही. 142,000, 503,500. Okay, now your question. जी नूर, क्वेश्चन. सर 10% आपने लिया है, 10% मैंने लिया है. वो किसका लिया है? किसका लिया है? उसने कहा था, क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि 10% ले फॉलोइंग मंथ की प्रोडक्शन का. अगर आप दोबारा क्वेश्चन को देखना चाहती हैं, सो दिस इज द क्वेश्चन. इट सेज मैनेजमेंट वांट्स मटेरियल्स ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, दैट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन. यानी जब भी आप क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना चाह रही हैं, वो उससे फॉलोइंग मंथ विच मीन्स नेक्स्ट मंथ का जो प्रोडक्शन है उसका 10% हो. तो अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना चाह रहा हूं जून की, तो वो होनी चाहिए जुलाई की प्रोडक्शन का 10%. जुलाई की प्रोडक्शन इज 23,000. इसके ऊपर कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 115,000. इसका 10% इज 11,500. ये इसका क्लोजिंग बन गया. जी क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, नो क्वेश्चन सो फार. सो वी हैव डन डायरेक्ट मटेरियल बजट. सर ये 0.40 सर ने क्या किया? मटेरियल कॉस्ट इज 0.40 डॉलर. ये आ गया. ओ, हमने एक चीज छोड़ दी है. सॉरी क्लास, हमने एक चीज छोड़ दी है यहाँ पे. क्लास, हमने एक चीज छोड़ दी है. नाउ इट सेज मटेरियल कॉस्ट इज 0.40 पर पाउंड. मटेरियल कॉस्ट इज 0.40 पर पाउंड. अगर 1 पाउंड 0.4 का है, तो आपने कितने पाउंड्स खरीदने हैं हर महीने? तो वो खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, या आपको कितने का खरीदेंगे? ये तो हमसे नहीं मांगा सर, आगे मांगेगा ना. तो उसने यहाँ पे डेटा दे दिया है, तो अगर यहाँ पे करते हैं तो सही है, नहीं तो फिर आगे जाके कर लें. सर तो 140 को सर सीधे भी करते हैं. सो रॉ मटेरियल टू बी परचेज लिख दिया.
ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, 56,000 ओके, मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.4 से। सो 0.4 इंटू 140, 56,000 रुपए उसको देने हैं जिससे खरीदना है, ओके। 221,500 इंटू 0.4, 88,600 88,600, 142,000 इंटू 0.4, 56,800 503,500 into 0.4, 503,500, 01400 ये किसका नंबर है, 2,14,000 2,14,000, 1400 आपने छोड़ा सर, 1400 का 1400 का 14, तो इस 1400 को कहने से अच्छा ये नहीं है कि 2,01,400, सो 2,01,400, ठीक, यूनिट 10, 100, thousands, याद है क्लास 3 और 2, वो तो होने के डिजाइन कुछ ज़ाया नहीं होता, ओके, क्लियर सो फार, क्लियर सो फार। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आपको पता है कि आपको कितने पैसे देने हैं, ठीक, लेकिन आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर जब आप चीज़ें बेच रहे थे मार्कर, तो आपने उसे कहा कि ठीक है ऑन अकाउंट ले लो, 70% इस मंथ दे देना और 25% अगले महीने मुझे मिलता है। आप कहते हैं ये मेरा कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पैटर्न है, सॉरी। सो इसी तरह पेमेंट पैटर्न्स भी होते हैं। आप कोई भी चीज़ फॉर कैश लेते हैं कभी कभी, जब आपको बहुत अच्छे रेट्स मिल जाएं या कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाए, कैश डिस्काउंट्स मिल जाए तो आप ले लेते हैं। अदरवाइज नॉर्मली विद योर सप्लायर्स दिस इज हाउ इट गोज। आप कहते हैं अच्छा ठीक है इतनी चीज़ें चाहिए, वो कहता है ठीक है यार आधे पैसे दे देना एक हफ्ते बाद, आधे पैसे उससे अगले हफ्ते, whatever is your arrangement with your supplier. So in the same way we have an arrangement over here. अब पैसे तो आपने देने हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारे पैसे आपने एक साथ नहीं देने, कुछ पैसे आपने देने हैं एक महीने, कुछ पैसे अगले महीने, कुछ पैसे अगले महीने। Now it says Royal pays 0.40 per pound for its materials. 1/2 of a month's purchases is paid for in the month of purchase. 1/2 of a month's purchases is paid for in the month of purchase. इसका मतलब ये हुआ कि आधा 1/2 50% is paid for in the month of purchase. यानी अगर आपने 56,000 का रॉ मटेरियल खरीदना है तो इसमें से 50% इस महीने देना है, द अदर हाफ इज पेड इन दी फॉलोइंग मंथ। तो आधा इधर आधा नेक्स्ट मंथ, यहां पे आधे इस महीने आधे अगले महीने, यहां पर आधा इस महीने आधे अगले महीने। सिंपल, हाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। द मार्च 31st अकाउंट्स पेबल बैलेंस इज 12,000। अब इसी तरह हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से ना, लेकिन मार्च को पहले से कुछ क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास था, तो मार्च का आपके पास बैलेंस, अकाउंट्स बैलेंस कितना है 12,000, ठीक है। सो मार्च का अकाउंट बैलेंस 12,000 है। और क्या उसने उस 12,000 के बारे में कुछ कहा कि वो पैसे कब देने? ये अलग मंथ में देने होंगे ना सर, ये अलग मंथ में देने होंगे। देखें अब पैटर्न इस तरह है आपका कि आधे आप इस महीने आधे इस महीने, तो अगर मार्च के आखिर में 12,000 बच गए, नहीं 12,000 हाँ 12,000 पेबल है, पेबल, उसने ये नहीं कहा कि टोटल अमाउंट 12 है। अकाउंट्स पेबल बैलेंस मार्च 31st, एसन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है अकाउंट्स पेबल का अकाउंट, अकाउंट्स पेबल का अकाउंट। मैंने मार्च में रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ये ओपनिंग पहले से कुछ था, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 24 का, इसमें से मेरे पास बच, मैंने 12,000 दे दी, बाकी रह गए 12 मार्च के एंड पे। मार्च खत्म, अब अगला महीना आ गया अप्रैल, तो ये 12,000 इस महीने का बन जाएगा ओपनिंग। तो इस महीने आप ये 12,000 देंगे और जो इस महीने चीजें खरीदेंगे उसका भी आधा देंगे आप। अब समझ आई? समझ आई? यानी आप जो भी चीजें इस महीने खरीदते हैं उसका आधा देते हैं, और जो पिछले महीने का आपके पास बकाया होता है वो भी देते हैं आप। तो आपसे कहते हैं वो पुराना वाला पहले पूरे दो, तो आप पुराने वाला देते हैं उसे, फिर आप कहते हैं अच्छा आप
सप्लाई करो, सप्लाई करते हैं, महीना खत्म होता है, आप कहते हैं इसका आधा ले लो, आधा अगले महीने, फिर अगला महीना आता है, वो कहता है पुराना वाला दो, वो पुराना वाला आप उसको देते हैं, कहते हैं और सामान लेते हैं, उसका आधा पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। जी सर पेमेंट में तो कोई 100% बन जाता है, तो इसमें बायर को क्या फायदा है? मतलब मैं अब 50% पिछला पे कर रहे हैं, 50% अभी पे कर रहे हैं, तो अमाउंट तो वही बनता है, तो इसमें बायर को क्या फायदा होगा? बहुत फ़ायदा है, इस तरह ज़रा गौर से सोचें। मैं मार्कर्स बनाता हूँ, ठीक, मैं आपके पास आता हूँ, कहता हूँ मुझे प्लास्टिक दें, आप कहते हैं ठीक है 100 रुपये का प्लास्टिक ले लो, ठीक, मैं 100 रुपये का प्लास्टिक आपसे लेता हूँ, आप कहते हैं पैसे, मैं कहता हूँ नहीं इस तरह नहीं करते, मैं कहता हूँ 100 रुपये का प्लास्टिक दें, इस महीने में 50 रुपये आपको दूंगा 100 के, और अगले 50 अगले महीने दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो पहला महीना है। अगर मैं दूसरा महीना देखते हैं, पहला महीना मैंने काम शुरू किया, मैंने आपसे प्लास्टिक लिया 100 रुपये का, मैंने 100 रुपये के प्लास्टिक से प्रोडक्शन की, मैंने प्रोडक्शन की, वो बेच दी, जिसको मैंने बेचा उसने कहा कि 70% इस महीने ले लो, बाकी 30% अगले महीने दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, उससे मैं 70% लेता हूँ, उससे मैंने 70% लिया, मैंने अपने खर्चे पूरे किए और 50% इसको दे दिया। ठीक, अभी मैं बहुत अच्छा हूँ, उसको भी तो प्रॉफिट में दिया, उसको भी प्रॉफिट भी दिया, वो प्रॉफिट भी कमाया, उसके साथ ब्लॉक किया मैंने 30%, और इससे मैंने कितने रोके 50%, सो आई एम स्टिल डूइंग गुड। मनी का फ्लो मैंने एग्जैक्टली, ठीक है, तो मैं फ्लो अभी भी सही रख रहा हूँ। ठीक है जी। ये 5% क्यों नहीं देगा? 5% कुछ लोग हैं, अब नाम नहीं लेता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो पैसे नहीं वापस करते। ठीक है, तो जब पैसे नहीं वापस करे तो मैं क्या करूँ, उसको जाके मार दूँ? नहीं कर सकता ना। ठीक है, सो बस 5% बैड डेट, ठीक है, मैं प्रॉफिट तो कमाता हूँ, ऐसा की बात, प्रॉफिट तो कमाता हूँ, तो ठीक है 5% बैड डेट, लेट्स बेयर इट। ठीक है, इफ आई एम मेकिंग 20% प्रॉफिट, सो लेट्स बेयर द 5%। ये पाकिस्तान में फिजिबल नहीं है सर। पाकिस्तान में होता है, 5% से ज़्यादा हो सकता है होता हो, इट विल डिपेंड ऑन बिजनेस। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इस तरह चल रही है। सर आपसे कितने कटते हैं? सीरियस Okay, let's start G. Let's start the payment. Let's start the payment class. Okay, so now, so half paid same month, half payment same month, और half payment next month. सही है, यही कहा ना हमने, हाफ पेमेंट सेम मंथ, हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ। अब इस मंथ में 56,000 लिया, इसमें से हाफ अभी पे कर देंगे, हाफ इज 28, हाफ विल बी नेक्स्ट मंथ। क्लियर ओके। मे 88,600 सेम मंथ, ये आ गया 44,300 44,300 सेम मंथ, 44,300 नेक्स्ट मंथ। गॉट द आइडिया? ओके, जून 56,800 हाफ पेमेंट 28,400 सेम मंथ, 28,400 अगले महीने जुलाई। सही है ओके। अब आ जाए इधर वापस, हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ, यानी इस महीने की जो पेमेंट इस महीने करनी है वो कितनी है 12,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश पेमेंट आपने किसी एक महीने में कितनी करनी है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यू आर पेइंग 28 प्लस 12, 28 इस महीने का, 12 पुराने महीने का, सो दैट मीन्स यू आर टोटल पेइंग 40,000। 40 ना, 28 प्लस 12 ओके, 28 प्लस 44 300 72,300 ओके, 28,400 प्लस 44,300 72,700 सही ओके। फॉर द होल क्वार्टर, 28 plus 44,300 plus 28,400 will be this figure, then this figure and then this figure। और अच्छा और को छोड़ें, इस तरह करें, छोड़ें जल्दी काम खत्म करें फिलहाल। वो हम फिर डबल चेक करना चाहिए। अच्छा पहले इसको लिखें ना, फिर बताता हूँ। 44,300 plus 28,400 equals 1,07,000 1,07,000 फिर एक जीरो छोड़ा। sorry my mistake, 1,07,000 सही है। 201,400 divided by 2, 1,400 divided by 2,
सेम आ गया, क्रॉस चेक हो गया, हैप्पी नाउ? ओके, दोबारा करें सर, प्लस किया है फिर मैंने दोनों क्रॉस, उसने कहा सर क्रॉस चेक भी सिखा देना। तो एक तो ये कि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दूसरा ये कि इसका हाफ अभी पे करना है ना, तो इसका हाफ लिया तो ये आ गया, सो दैट मीन्स सेम, क्रॉस चेक हो गया। ओके, 12 प्लस 28 प्लस 44 300 इक्वल्स 12 plus 28 which means 40 plus 44 which means 88 84 300 plus 100,700 ठीक। अब क्रॉस चेक करना है, इन तीनों को ऐड करें, शुड बी इक्वल टू 185, क्रॉस चेक भी करना। तो मतलब कोई गलती की हुई है ऐसी, सिंपल ऐसा करें, ऐसे जिस तरह करते हैं करें। आपको वंस अगेन मैं सिर्फ आपको दोनों बातें इसलिए सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर कोई एक नहीं याद आ रहा तो दूसरा से कर लें, या अगर दोनों याद आए तो क्रॉस चेक कर लें। ठीक है जी, क्लियर सो फार? ओके, प्रेजेंटेशन एक शर्त पे कर सकते हैं कि सिर्फ एक या दो करेंगे और उसके बाद दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे, और दूसरा ये कि इसको रब आउट नहीं करेंगे इस वाइट बोर्ड को। ठीक है, पॉज, काइंडली पॉज, ओके, नॉट स्टॉप, पॉज। बल्कि फ़हीम 3 क्लास